Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Challenge, let's start with the first scenario. So, Dr. Amir, is you are going to be the examiner, and Dr. Numan Tasneem, you are the candidate, right? So, okay, Dr. Amir, please go ahead. Well, Dr. Numan, 45-year-old female, presents to you with 1 year history of neck swelling. She has swelling on the right, and she is having no signs of hyperthyroid, and she has no symptoms of dysphagia or dysphonia or hoarseness of voice. How would you manage this case? Okay, sir, this is a 45 years old lady and she has a neck swelling. First of all, I would confirm that it is a thyroid swelling, and I would ask the patient to swallow. It's a thyroid swelling. It's a thyroid swelling. Okay. With the history, I will ask about history of the swelling. It's when did she first notice the swelling, how she noticed the swelling, then how it has progressed, any associated symptoms. Okay, history done. What would you do? How would you confirm? What would be your next step? Then after history, I will do examination. I will examine the thyroid swelling, its site and its shape and its mobility and its. Okay, what is Cocker test? In Cocker's test, we check this. 1 minute. Okay, which investigation will you do? 1 minute to I will investigation. I will order lab tests like thyroid function tests, and I will. No hypothyroid, no hyperthyroid. Okay, I will get. Thyroid function tests are normal. I will get an radiologically ultrasound of the thyroid to see the presence of nodule and its size and its dimensions and any other nodules. Okay, ultrasound done. There is 2 by 2 centimeter hypoechoic nodule on the right side, and there is 1.5 into 3 centimeter hypoechoic nodule on the other side. So I would request my I would request my radiological colleague, interventional radiologist, to do an ultrasound guided FNAC of both of these nodules. And why both the swellings? Sorry? Why both the swellings? Because both are separate nodules, and she's above 40, the lady is above 40, so I have to rule out malignancy in both of these nodules. Okay, the left one is thigh 5 and the right one is thigh 3. What would you do? So the left one is clearly malignant, and the right one is probably malignant. So I will first consult the patient about I have to operate on this patient. I will do a thorough metastatic screening of the patient. I will get a CT scan of chest and abdomen and bone scan. And, okay, no metastasis. So what would you do? So I will consult my senior neck surgeon. If he is available, I would like to refer the patient to him, and we will plan. No, he is not available. You are the surgeon. What will you do? So I will also get an ultrasound for any lymph nodes involvement in the cervical. But there is no lymph node involvement. So I will, sir, I will plan a total thyroidectomy with isthmectomy and with sparing of parathyroids and recurrent laryngeal nerve and these important structures. And I will counsel the patient. Why would you do? Why would you do total thyroidectomy in this case? Because she has a malignant disease, and both the nodules are. One is thigh 5, that is malignant. The other is thigh 3. What is thigh 3? Thigh 3 is probably suspicious of malignancy. Now. Okay, it's a atypia of unknown significance. Okay, so how would you preserve parathyroids and recurrent laryngeal nerve surgery?
For parathyroids, we have to spare the inferior thyroid artery. We should not ligate it during surgery, and we have to identify the superior parathyroids and inferior parathyroid glands. For recurrent laryngeal nerve, we have to identify the nerve by various signs. It runs in the tracheoesophageal groove. There is toothpaste sign, and it has relation. It lies in close proximity to inferior thyroid artery. So we have to identify it on both sides, preserve it up till it enters the cricoid cartilage. What are the landmarks to preserve, identify recurrent laryngeal nerve? ये थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा वैसे फ्रेश करने के लिए, लेकिन Okay, have you heard of the tubercle of Zuckerkandl? Yes, I have heard it, but I have forgotten it now. I have heard it. Okay, doctor, thank you. ये कॉकर्स यही होता है ना, ये दोनों तरफ दबा के जो करते हैं। जी सर, दोनों तरफ दबा के ये आपको उन्होंने स्टैंडर्ड पूछा, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन का बार बार जिक्र कर रहे थे ना, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर कॉकर कब दो। तो जी सर, वेरी वेल डन सर, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैं तैयारी नहीं है, ये जो 5 ग्रेड्स हैं जरा बताइए जरा, ग्रेड्स 5 क्या क्या हैं? ओके, हाँ आप इस तरह सर, इसमें ये ग्रेड ये 3 जो है ना सर, एटिपिया ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस है, और ग्रेड 4 जो है वो फिर फॉलिकुलर सेटोलॉजी आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है हाईली सस्पिशियस, और फिर मैलिग्नेंट आ जाता है ग्रेड 6 ना, ये थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं इनको। अच्छा जी, insufficient, 1 normal, negative normal, so 2 is benign, 3 is suspicious for malignancy, and then is probably अगला आ जाता है 5-4 mean it is probably malignant. Is it correct? 3 और 4 में क्या फर्क है? 5 is malignant कैंसर आ जाता है, और फिर जाती है फॉलिकुलर सेटोलॉजी। हाँ, ये देखना पड़ेगा बिकॉज अल्ट्रासाउंड की बेसिकली है, ये क्लासिफिकेशन है, और बेथेस्डा क्लासिफिकेशन ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये एक चीज थी जो मेरी कि जी जब भी उसने दिया डायग्नोसिस दिया, तो आई थिंक वी नीड टू आस्क व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। जो थाई 5 भी है, तो क्या इज इट पेपिलरी और फॉलिकुलर तो खैर वो आएगा उस पर, राइट का जो दिया उसने शायद एटिपिया दिया ना। जी सर, वो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस वाकई इसमें जो है पूछना चाहिए कि भाई कौन सा है, पेपिलरी है क्या है। हाँ, क्योंकि उसको पेपिलरी है, अगर वो मेडुलरी बना देता है तो फिर वो तो टोटल थायराइडेक्टमी है। तो क्लियर कट इज टोटल थायराइडेक्टमी। हाँ, फॉलिकुलर में भी टोटल थायराइडेक्टमी है। पेपिलरी में बंदा फंसता है कि भाई करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि उसमें लो ग्रेड फीचर उसने दिए हुए हैं। हाँ, अगर उसने यानी 2x2 सेंटीमीटर की नोड्यूल है, और साथ फॉलिकुलर का ये है ना, यू कैन नॉट से इट्स ए कार्सिनोमा और एडिनोमा ना ऑन द एफएनएसी। जी सर, उसका इसीलिए उन्होंने अलग से ग्रेड बना दिया ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको तो ऑब्वियसली डिफाइन करना कि जो टोटल था, व्हाई आर यू गोइंग फॉर टोटल थायराइडेक्टमी, बिकॉज़ ऑन द राइट साइड इट्स हाई 3। तो सर इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी। सर ने बात ठीक की है। इसका डिफेंस ये है कि जो फॉलिकुलर लियन है ना, जो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, मैं सर बताता हूँ इसको ना, जो राइट साइड पे जो थाई 5 था ना, वो तो वैसे मैलिग्नेंट है ना, ठीक है, उसकी तो आपने निकालना है। और जो थाई 3 है ना, जो फॉलिकुलर लियन है, उसमें यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एडिनोमा एंड कार्सिनोमा। तो जो बायोप्सी ही बेसिकली लोबेक्टमी होती है उसकी। अच्छा, इसमें ना ये होता है कि प्रोटोकॉल बताया आमिर, पेपिलरी का प्रोटोकॉल क्या है? सर पेपिलरी में ना सर 2 हैं, एक है क्या नाम है उसको बोलते हैं लो रिस्क लीजन्स, और एक है हाई रिस्क लीजन। अच्छा, अगर लो रिस्क हैं सर, तो उसमें लो रिस्क वो है कि जिसमें आप रेडिएशन नहीं देंगे,
अब उसमें जो है ना फिर आप कंप्लीशन थायराइडेक्टमी भी नहीं करेंगे। और लो रिस्क फीचर्स ये हैं कि कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ना हो, एज फीमेल जेंडर हो, एज जो है वो क्या नाम है आप कह लें कि 55 से कम हो, 55 45 55 से 56 कम हो, 45 से। और or फिर उसके 55. बाद जो है Now क्या it's नाम है 55. लिम्फेडिनोपैथी ना हो, कोई लोकल इन्वेजन ना हो। साइज कितना हो, और नोड्यूल का साइज कितना जी हो? सर, 2 जी सेंटीमीटर सर से लो कम, 1 सेंटीमीटर से कम हो। 1 सेंटीमीटर किससे? से? No, 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 नहीं no, नहीं, no, साइज no, एक कम। वाला जो है ना वो माइक्रो कार्सिनोमा है, no, 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 वो no, वेरी no. लो रिस्क, अच्छा, 2 वो वेरी सेंटीमीटर लो। वाला है। हाँ, एक ये सेंटीमीटर मतलब तो 1 कभी कभी सेंटीमीटर से ऊपर और 4 सेंटीमीटर से छोटा जो लियन है हाँ ना, 1 to ये 4 इसके लिए centimeters. So बेसिकली there 1 to should be 4 सेंटीमीटर वाला जो है no इसके extra दरमियान thyroidal ये spread. बेसिकली जी, नो एक्स्ट्रा थायराइडल स्प्रेड और नो लिम्फेडिनोपैथी, नो इन्वेजन इनटू द रिकरेंट लेरेंजियन नर्व और वेसल्स, मतलब लोकल कोई वेस्कुलर इन्वेजन या वैसे ना हो। तो यानी लोकलाइज मिलिग्नेंसी हो एक लोब में, तो उसको फिर ये कर सकते हैं क्या जी, उसमें कहते हैं कि लोबेक्टमी इज सफिशिएंट। और 45 से कम एज हो, 45 नहीं, not 55. 55? असल में सर जो थायराइड है ना, इसमें जो एज है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेडिंग, जो स्टेजिंग है, इसमें ठीक है, लेस देन 55 जो है ना वो स्टेज 1 और 2 है। ठीक है। और और 55 जो तो ओवर मतलब 55 है उसमें स्टेज 1 2 3 4 है। स्टेज 1 जो है ना वो ये है कि जी लोकल डिजीज है, और स्टेज 2 है कि जी अगर मेटास्टेसिस है और लेस देन 55 है, तो यानी मेट्स भी हैं तो इट्स स्टेज 2 नॉट 3 और 4। तो ये बेसिकली है सर। इसमें इसमें अच्छा, अगर बेसिकली जो एक अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की वो है कि अगर मल्टी नोडुलैरिटी है ना सर, तो दैट इज एन इंडिकेशन फॉर टोटल थायराइडेक्टमी। तो ये बेसिकली उसमें ये आ जाता है। एक वैसे तो उसने लो रिस्क बनाया, लेकिन जब ये 2 नोड्यूल्स हो जाएंगी तो उसमें फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं कि जी टोटल थायराइडेक्टमी डिफेंड कर अच्छा, अगर सकते हैं। मेटास्टेसिस है तो फिर हम सर्जरी तो नहीं करेंगे? अगर मेटास्टेसिस आ गया किसमें सर? थायराइड सीए में, अगर मेटास्टेसिस कहीं पिक हो गया किसी चीज, किसी भी जगह पे, फिर सर उसमें जो सर्जरी? इस ये तो जो है ना सर, थायराइड का कैंसर इसकी तो 20 ईयर सर्वाइवल है, बाकियों का 5 इयर्स होता है, इसका 20 ईयर सर्वाइवल है। तो मेटास्टेसिस भी है तो उसमें फिर ये है कि टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे और साथ आप वो कर देंगे, क्या कहते हैं, आयोडीन थेरेपी। रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन कर देंगे। नहीं नहीं, मेटास्टेसिस फर्ज कर बोन में आ जाता है कहीं, तो फिर भी थायराइडेक्टमी करेंगे? सर थायराइडेक्टमी करेंगे तो रेडियो एक्टिव आयोडीन से वो एब्लेट होंगे ना मेटास्टेसिस। अच्छा, ठीक है। जितने मेटास्टेसिस हैं उनको एब्लेट करने का पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्कैन के साथ, और फिर उसके बाद एब्लेट करेंगे रेडियो आयोडीन के साथ। क्योंकि अगर आप थायराइडेक्टमी नहीं करते तो फिर जो भी आप रेडियोएक्टिव आयोडीन देंगे वो थायराइड ही चूस जाएगा सारा। हाँ, ये डिफरेंशिएटेड बिल्कुल करेंगे ना, ऐसे ही। अनडिफरेंशिएटेड में तो नहीं कुछ करेंगे फिर, अगर वो फैल गया तो। हम्म। वो एनाप्लास्टिक जो है सर, उसमें तो आप कुछ करें ना करें वो तो वही है कि उसमें सिर्फ एक बायोप्सी करनी होती है, अगर कोर बायोप्सी, और बाकी उसकी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है। और अगर ट्रेकिया को कंप्रेस करे तो उसका जो है ना वो समझ, हिस्टेमेक्टमी करते हैं, ठीक लेकिन है। वो भी कहते हैं कि अवॉइड करें रेडिएशन बस में। अच्छा जी, अभी चले सर फाकत से पूछते हैं। सर मैं कॉल पे हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। चले बस फिर 2 ही कर लेते हैं आज। अच्छा सर, शफाकत, हाँ, 45-year-old obese male has undergone bariatric surgery, and he has presented to your hospital with upper abdominal discomfort and vomiting. The abdomen is soft, non-tender. How would you proceed? to start off with the history. So I would like to know what I will ask the patient from the what type of the procedure he has underwent, and when was this Sleeve procedure, gastrectomy was done. Sleeve gastrectomy was done for this when, patient. and I will ask you when was this procedure performed. Uh, it was performed around 3 weeks ago, 4 weeks ago. Okay, 3-4 weeks ago. So I will ask the questions, the further questions related to the vomiting and the number of episodes, when did it occur, and the content of the vomiters.
And I will ask the specific features of the pain, when it occurs, the relation with the meal and with the vomiting. And I will be suspecting this patient having a pain and the vomiters. So I will be concerned with this patient. So probably there's any obstruction. The stoma, is it obstructing or not? It's 3 weeks now. So I would like to take the history and then I will perform the physical examination to see. So the history is just history is insignificant just for pain and vomiting. He Pain and doesn't have any. Yeah. What else Okay. you would like to ask? Further, so I would like to ask whether the patient is passing stool with the passing platters. So is there any abdominal distension or not? Yeah, he was doing well. Just for the last 1 day, he has not passed to. He has not passed stool. So if is he passing platters? Yes, he is passing platters. Is he passing platters? Okay. So then I will perform the physical examination to see what are the vital signs, pulse, blood pressure, is there any fever, and then abdominal examine whether there is any tenderness or not. His Distension. pulse is 110 beats per minute, and his BP is 110 by 70 millimeter of mercury. So 110 pulse is quite high. It's a tachycardia, although it's a 3 week now. So still, I will have high suspicion for the complication. For example, the patient could have a leak from the staple site. So then the next investigation would be to get the rather than the lab investigation. So I have more important investigation to get the contrast and CT scan with oral contrast. So I will talk to my radiologist for the contrast and CT scan of the abdomen. Okay, contrast and on CT scan done, it shows no leak. Okay, there is no leak. Okay, and is there a collection or something like that? No, there is no collection. There is no collection. So is there any other finding which I will discuss with my radiologist? So is there any other finding which on the CT scan? Yeah, there is mild to moderate edema of the bowel. Mild to moderate edema of bowel. Okay, so then the edema of the bowel loops, they're normal. So they're bowel loops are normal. Yes. Yeah, Okay. the small gut is edematous. Small gut is edematous. So I would ask him what is the size of the portal vein? Is there any occlusion or not? And whether the patient is receiving any prophylaxis for the thrombosis, for the development of thrombosis. The patient doesn't remember that he is taking or not. Okay, so I would talk to my radiologist. What are you suspecting? So in this case, there's edema. The patient is passing platters. So looking at the picture, probably this patient has developed the portal vein thrombosis. How would you confirm? So then I would like to have the CT, request CT angio along with the Doppler ultrasound of the abdomen. Okay, angiography was done and it showed portal vein thrombosis. Okay, so the patient is the next. My plan would be I will consult the vascular surgeon, and this patient requires the anticoagulation. So in consultation, I will start off with the heparin in this patient. So I will start off with 80 unit international stat, then 18 unit international unit per hour. So initially, for 4 or 5 days, then I'll switch over to the oral warfarin. And meanwhile, I will monitor the patient for the improvement of the symptoms. Okay. Anything else that can be done apart from anticoagulation? So before starting the anticoagulation, I will send the screen. I will specifically ask the patient, why did the patient develop this thrombosis? So is there any family history of DVT as the patient? Is there any previous history of the development of the deep vein thrombosis? So I would like to send the thrombophilia as blood sample for the thrombophilia screen. Okay, he has obvious obesity, that is a risk factor for DVT. Moreover, he has undergone a bariatric procedure.
Yeah. Anything else can be done for this DVT? For portal vein thrombosis, I would like to see what's the condition of the heart going for any CBD as well or not. So this patient has a portal vein thrombosis, but I would like to check this legs as well. So is there any evidence of the CBD? Plus, no evidence of DVT. No evidence of CBD. Okay. So then I will continue with it, initially with the conservative treatment, the anticoagulations, and I will monitor the patients. And the patient will take at least 6 months of the anticoagulation. Okay, thank you. G. Now, अच्छा ये feedback. बता Sir. इसमें आपने डायरेक्ट सीटी स्कैन क्यों, पहले अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया वैसे? Sir, because I went for the CT scan because once I asked the pulse, what is the pulse is 110. So 110 is that is the sign patient could have leak. In the obese patients, this is the just and only one sign. Otherwise, patients find there's no tendon and nothing. So that's why because it's life-threatening complications. So that's why I requested for the contrast and CT scan, the total contrast. That was the reason. दूसरा ये स्मॉल इंटेस्टाइनल एडिमा से कैसे पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस पे चले गए हैं हम? Edema, it's there is only edema. There's a small bowel edema. Small bowel edema है ना, और edema की क्या causes हो सकती हैं? So there is no leak नहीं है इसके अंदर. So why did this patient develop the edema? ये सिंपल ये जो अपना अगर कह लें हम डंपिंग सिंड्रोम है, डंपिंग में एडिमा नहीं हो जाता? नहीं, डंपिंग में एडिमा नहीं. अगर वो कहते हैं ना पूरा थिकन है, एडिमा है, एडिमेटस स्मॉल बाउल है, पोस्ट ऑपरेटिव एडिमेटस होगी बाउल, तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इसके फ्लो, ब्लड फ्लो से ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है ना, या ये रीजन हो सकती है, या उसकी रीजन कोई इन्फेक्शन उसके साथ होगा, लोकलाइज होगी, लेकिन वो लोकलाइज होगी. अगर जनरलाइज ही बाउल एडिमा है तो देन इट्स मोस्ट लाइकली कोई पोर्टल वेन से रिलेटेड है, स्मॉल बाउल एडिमा है. सर ये बाउल एडिमा की और ये जो है ना क्या नाम है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बड़ी रीजन है, और साथ फिर इसी तरह एक होता है कि जी अगर इन्फेक्शन हो सीवियर तो उसके साथ भी कई दफा ये होता है कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है और फिर पोर्टल वेन के अंदर गैस भी आ जाती है. पोर्टल वेन, हाँ बिल्कुल. तो ये सिंपल सीटी स्कैन पे नहीं नजर आनी चाहिए थी ये जो चीजें हैं, पोर्टल वेन और ये मसले? सर इसमें तो देखें, इस पे तो मैंने तो सीटी इसलिए कराया था, जब उसने बताया कि जी पल्स इज presented with abdominal pain and vomiting. मैं ये पूछ रहा हूँ पोर्टल वेन की फाइंडिंग्स आ जाती हैं. इसीलिए मैंने से कहा था एडिमा, तो मैंने कहा था कि आई विल डिस्कस विद द रेडियोलॉजिस्ट आपकी व्हाट आर अदर फाइंडिंग्स, और इसके अलावा क्या एडिमा है, उन्होंने कहा एडिमा है, अभी आगे क्या है और कोई एसोसिएटेड कोई चीज है बस. तो जनरली वैसे जो नॉर्मल जो सीटी स्कैन कराते हैं स्पाइरल सीटी, उस पे भी आ जाता है कि पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस है. नहीं अगर पिक हुआ तो फिर आपको स्पेशल सीटी उनको कहना पड़ता है, सीटी एंजियो करेंगे. आमिर नहीं, इवन अल्ट्रासाउंड पे भी खैर वो कहते हैं, आमिर हाँ अल्ट्रासाउंड पे भी आते हैं, बिल्कुल पोर्टल वेन नजर आती है. तुझसे एग्जैक्टली उसने कैसे कहा था, ये पोर्टल वेन पे कैसे लेके गया था? सर इसी तरह ही लेके गया था मुझे जो है ना, ये मैं भी थोड़ी टामक टोइयां मार रहा था. पहले मैंने लीक पे गया, जैसे सर गए तो लीक से मैंने सीटी कराया, तो सीटी पे उसने पहले तो कहा जी नो लीक. फिर उसके बाद मैंने कहा कि जी एनी एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग ये वो फलाना टमकाना, उसने कहा नहीं है. मैंने कहा एनी अदर फाइंडिंग, फिर उसने कहा जी बाउल इज एडेमेटस. तो मैंने कहा जी दिस कंफर्म्स माय फाइंडिंग के जी जो है ना ये हाई रिस्क होते हैं, तो इसके लिए मैं करूंगा डी डायमर करूंगा और फिर जो है साथ एंजियोग्राफी कराऊंगा. तो उसने कहा जी एंजियोग्राफी पे वो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है. तो फिर क्या करोगे जी? मैंने कहा जी इसमें जो है अगर तो रिसेंट ऑनसेट है तो फिर उसमें जो है वो डिस्कस करूंगा. थ्रोम्बोलाइसिस का भी रोल है, लेकिन जो है पहले एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर दूंगा. और बाकी जो है क्यों नहीं दे रहे आप, दूसरी हेपरिन क्यों दे रहे हैं? सर फ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो है उसका अच्छा रिजल्ट है, बस वो जरा बताने में भी अच्छी लगती है कि 80 यूनिट स्टैट आप देंगे और साथ फिर 18 यूनिट्स पर आवर देंगे. रिवर्स इट, और इसका हाफ लाइफ थोड़ी है, और रिवर्स भी आप कर सकते हैं. जो आजकल तो सारे वैसे क्लैक्सेन ही छिक रहे होते हैं. है बिल्कुल ऑप्शन है, स्टार्ट विद 2 मंथ्स. क्लैक्सेन दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं.
हाँ लेकिन इसका जरा सर ये है कि वेट और उसके हिसाब से ना एक वो अफेक्ट आप कह लेंगे बड़ा वो अर्ली आप देख सकते हैं, फिर वही है कि रिवर्स भी हो सकती है, शॉर्ट लिव्ड है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उस हिसाब से बॉयल मॉनिटरिंग के लिए जो है ना ज़रा वो मुश्किल है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है उसकी मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं है, फैक्टर 10 ऐसे वगैरह होता है, वो बहुत दूसरा सारी जगहों पे नहीं होता। दूसरा आजकल एक तो 80 और 18 बोल रहे हैं ना, तो 80 पर केजी जरूर बोले। वो शफाकत तूने शायद बोला नहीं है 80 पर केजी स्टैट और 18 पर केजी पर आवर। 18 पर केजी। दूसरा आजकल वार्फिन की जगह ज्यादातर तो ये रिवरऑक्सा बैन यूज कर रहे हैं मस्कुलर वाले। वो तो साथ ही आप तेरी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सर, वो बिल्कुल आपके जैसे जिराल्टो जो ना रिवर अच्छा बैन, आपको मॉनिटरिंग और बाकी उससे आजकल मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। हम्म हाँ ठीक हो गया। लेकिन ये वो ये ना बैट्रिक सर्जरी में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो है ना कॉम्प्लिकेशन, वी डिडंट डिस्कस। ये वाली हमने पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में, बाकी हमने कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की, लेकिन ये वाली डिस्कस नहीं की। अच्छा, अगर इसी पेशेंट में ये गॉल स्टोन बना देता, अगर ये गॉल हाँ तो स्टोन हो ये है गए ना, हैं। एक मिनट सर करते हैं अभी नेक्स्ट यही सिनेरियो बना देता है ना, कौन करेंगे, मैं करूँ आप करते हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर गॉल स्टोन सर बनाएगा वो तो फिर हम सिनेरियो तो देगा ना कंजर्वेटिव ही मैनेज करेंगे। सर, मैं कह रहा हूँ ना अच्छा। सर, चले पता है मैं इसे सर आप हमने सर वैसे नहीं नुमान से पूछना। पूछता हूँ। सर पता है सर, नुमान, इनसे इस तरह नहीं हमने पूछना, ये मैं एज ए एग्जामिनर पूछेगा, फिर उसके अंदर जवाब देगा कि भी इस तरह देना था, तब हमारी जो है ना वो होगी कि वाकई हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, हमारी प्रैक्टिस होगी ना। ठीक है, तो चलें जी, गालस्टोन वाला सर से कर लें जी। चलें जी, डॉक्टर नुमान, देयर इज अ पेशेंट, 35 year old female. She has underwent bariatric surgery. She underwent Ru and Y gastric bypass, and now she has presented with right upper quadrant pain. And how would you proceed? Sir, I will first take complete history. When did she had this surgery, and The surgery was done 1 year ago. 1 year ago, and since when she's having this pain, and what is the frequency of the pain, and history of pain, its relation to food intake, and its frequency and its severity, and how many It's severe attacks pain that occurs has she for had a few minutes, and then uh, it's associated with fatty meals, and it's present for the last 1 month. Okay, so I will also take other history, like any associated vomiting or any bowel or urinary bowel complaints or any fever, and then I will proceed to examination. I am suspecting a complication that she has developed gallstones secondary to her How would you confirm? I will investigate the lady. I will order a radiological investigation like ultrasound abdomen first. So ultrasound was done. It showed 3 acoustic shadows in the gallbladder, and there was CBD 1 centimeter. Okay, so the gallbladder is otherwise normal. There are no signs of acute cholecystitis or any pericholocystic fluid. No, there are no signs of any Okay, cholecystitis. so in this lady, she has developed gallstones and common bile duct is a bit dilated. So I will next I will like to get her LFTs and her baseline blood CP, etc. And Her bilirubin is 1.5 times normal, and direct is more raised. okay, so I will like to next I would like to get an MRCP done, magnetic resonant pancreatic. So MRCP was done, and it showed 1 centimeter filling defect in the lower part of the CBD. Okay, so this lady, the stone has slipped, and she has developed. She has a case of cholelithiasis with cholelithiasis. I will refer this patient to gastroenterologist, and I will request for an ERCP with possible stenting of common bile duct, and to clear So the this is a patient post ER Ru and Y gastric bypass. Dr. Tasneem, how would you do ERCP in this case? post Ru and Y bypass. Okay, so
I will again, I think I will like to carry out maybe HIDA scan to see the anatomy of the common bile duct and gallbladder, and then I will Okay, plan. it shows same anatomy as MRCP, though HIDA scan is not that proficient. It's not that investigation of choice once you have done MRCP. Okay, So you this said that you would do a ERCP. Well, how would you do ERCP in this case? I don't think ERCP is possible in this case, or if it is possible, it is, I don't know, sir. ERCP is Okay, how do you understand what is the altered anatomy now at present? Sorry? What is the altered anatomy? Why you cannot do ERCP? Because the stomach is now attached with jejunum, the distal loop of jejunum. The jejunum is transected, and the distal loop is anastomosed to the stomach, and the proximal loop is opened into the jejunum as jejunal-jejunostomy. So the stomach is going directly into the jejunum. Okay, anything else that you can do apart from ERCP? So I will plan for surgery, and I would like to refer this patient to a hepatobiliary unit for surgery, which will involve a laparoscopic cholecystectomy and choledochotomy. Okay, the patient is not that fit for choledochotomy. Anything else then that can be done? Your anesthetist says that the surgery cannot be done right now. Okay, so I will assess her general condition. Is she? I will like to admit the lady and manage her conservatively with IV fluids, IV antibiotics, IV proton pump inhibitors, and bowel rest with nil parorum. And I would like to manage her conservatively and to see how we. Okay, thank you. You manage the lady conservatively, but she continued to have biliary obstruction and she developed cholangitis. Okay, doctor, thank you. So we can do. We can. Yes, transhepatic. Bilkul, sahi hai sir, zabardast. No, with this patient who has undergone the U&Y bypass, so there are the options. So starting with the, you can have if the facility, the gastroenterologist expert and an EUS guided ERCP can be done. The laparoscopic assisted ERCP can be performed. And there's another option of going with the laparoscopic cholecystectomy along with the on-table. So you can proceed with the EUS guided ERCP, then the double balloon enteroscopy with ERCP, then the laparoscopic assisted ERCP. Then there's another option of going through the, just like a PTC, going through the liver, putting a scope into the biliary channel, provided that bile duct is dilated. In this, it's 1 centimeter. So if the interventional radiologist is expert enough, so it depends upon the facilities which are available. So if nothing is available, so then if the laparoscopic cholecystectomy with CBD exploration, right? So these are different options for managing these stones. ये जो पीटीसी वाला बता रहा है, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ये जो स्कोप डालते हैं, कोलेंजियोस्कोपी, जो क्या कहते हैं, कोलेंजियोस्कोपी, क्या परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द स्टोन, जो ना कोलेंजियोस्कोपिक पीटीसी रिमूवल, यानी ईआरसीपी से नहीं आ सकते तो पीटीसी से आ जाए, पीटीसी से आ जाएगा. तो इन दिस वे इट कैन बी अप्रोच्ड. और कोई क्वेश्चन उससे आगे जो क्वेश्चन था वो पूछ लें ताकि फिर हम आगे इसको सिनेरियो कंप्लीट कर लेते हैं. यही था सर बेसिकली. इसमें ये कल हमने डिस्कस किए थे ना, कल किए थे. ये कल सर से मैं दोबारा जो है ना ये रिवाइज करके गया था. ये सर ने इस पे कोई रिसर्च की थी, तो मुझे तो दो का ही पता था कि लेप्रोस्कोपिक सीबीडी एक्सप्लोरेशन और ओपन सीबीडी एक्सप्लोरेशन. ये पहले जो सिनेरियो किया था, याद है ना, सिनेरियो किया था. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ सिनेरियो भी था. हाँ बिल्कुल. तो अब देखते हैं अब ये वाला यही सेम जो है, अगर आप उसको कहते हैं यार ये बता दो तुम्हारा सिनेरियो क्या था, इसने वैसे बोल देना था.
लेकिन जब आप एज ए कैंडिडेट उसको रिस्पॉन्ड करेंगे फिर आपको पता चलता है यार मैंने खुद किस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया, क्या चीजें मेरी डेफिशिएंसी कहाँ भी, ताकि मतलब उस पर बंदा मजीद उस पर आके जाके बंदा देख लेता, पढ़ लेता है, देख लेता है ना। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक और ओपन सीबीडी एक्सप्लोरेशन में कोई है प्रोटोकॉल्स के, किसमें या करना है किसमें नहीं करना? या so there are two approaches, through transcystic and the transcholedochal। cystic duct के थ्रू भी जाते हैं और सीबीडी के थ्रू भी। तो क्राइटेरिया है, अब उसमें क्या क्या चीजें देखनी है आपने, ये देखना है साइज ऑफ द डक्ट, सिस्टिक डक्ट का साइज क्या है, नंबर ऑफ स्टोन्स क्या है, साइज ऑफ स्टोन्स क्या है, इन्फ्लेमेशन आपने अराउंड द सीबीडी, ठीक है। और फिर एक्सपर्टीज का भी है। तो इनको देखते हुए आपने फिर देखना होता है कि जी आपके अगर फॉर एग्जांपल सिस्टिक डक्ट इज इट शुड बी मोर देन 3 मिलीमीटर, सिक्स डक का साइज जो है, क्योंकि अभी क्लेंजियोस्कोप डालते हैं ना, जो उसको उसमें जो कैथेटर जाता है वो आपके 3 mm की तो होती है इसकी जो आप कह लें शीट कह लें उसकी जो है ना। स्टोन अगर नीचे पड़े हुए हैं, जो सुपीरियर लोकेशन नहीं है, प्रॉक्सिमल हेपेटिक डक्ट के ऊपर नहीं है, 4 स्टोन से ज्यादा होंगे तो फिर भी आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और जो साइज अगर कॉमन बाइल डक्ट इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आप ट्रांससिस्टिक उसमें जाएंगे, स्मॉल स्टोन्स हैं, डिस्टल पड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर देन जॉइनिंग ऑफ द सिस्टिक डक्ट विद द कॉमन बाइल डक्ट, अगर बिल्कुल आ रहा है ना, ओब्लीक आ रहा है, राइट, उसकी वॉल पे ज्वाइन कर रही है कॉमन बाइल डक्ट को, फिर देन इट्स ओके। अगर लेकिन अगर स्पाइरल बन रहा है और लेफ्ट पे ज्वाइन ज्वाइन कर रही है, तो अगेन यू कैन नॉट रिमूव द स्टोन थ्रू ट्रांससिस्टिक अप्रोच। और फिर 3 mm का तो उसको डायलेट करते हैं, डायलेटर डाल के उसको डायलेट करते हैं, फिर उसके जो है ना क्लेंजियो जो तो कहते हैं कोलिडोकोस्कोप डालते हैं। तो 3 mm की होती है ये कोलिडोकोस्कोप जो है ना, डायलेट करके, इवन वो भी ना भी डालें तो सिंपल आप उसे लॉजिकल भी निकाल लेते हैं, कैस्टर डालते हैं जिस तरह फोलिस होती है फिर एम्बोलेक्टमी कैस्टर, उसके जरिए एक्सट्रैक्ट डार्मियम बास्केट डाल सकते हैं, तो डिफरेंट वेज है। जो ट्रांसकोलिडोकल है, सीबीडी के थ्रू जाना है, तो वो आपके वही है कि आपकी जो स्टोन ज्यादा है, प्रॉक्सिमल डक्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, इन्फ्लेमेशन का अपनी सूचनी कैपेबिलिटी ऑफ द सर्जन मतलब एक्सीलेंट आपकी उसकी है, तो तब जाके उसके ट्रांसकोलिडोकल जाएंगे, तो डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोन होते हैं बड़े, और उसमें फिर ट्रांसकोलिडोकल जाते हैं अगर आपने करनी है ठीक है। लैप्रोस्कोपी। और ओपन, ओपन कोई मस्त कि कोई ऐसा केस इंडिकेशन की ओपन ही करना है इसमें? देखिए वो तो अगेन इट्स रिलेटिव है ना, कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो और सब कुछ कोई और चीजें, तो उस सूरत में फिर आप ओपन पे जाएंगे। लेकिन ओपन हमने ना जितना इस सिनेरियो के अंदर आप बेस्ट एक आप कहीं रेफर करेंगे, अनलेस कि पेशेंट ऐसी कंडीशन है उसकी कि टेबल नहीं, इवन देन कि जैसे कोलेंजाइटिस का अगर सिनेरियो है और पड़े हुए स्टोन्स पड़े हुए, आप क्या करें, आपको वो भी नहीं है आपके पास, आप बेस्ट होता है ना, कोई पीटीसी करा ले, ऊपर से ड्रेन करवा ले, ऊपर से भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। यूएस गाइडेड भी है, यूएस गाइडेड भी जो कोलिडोको डिडोनोस्टमी भी की जाती है, तो डिफरेंट है। ये सारे करने के बाद फिर वो कहते हैं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, आखिर में ओपन इज लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, मैंने हिडा स्कैन की बोंगी मारी है, उसका रोल है कोई वैसे हिडा स्कैन? नहीं, हीटा स्कैन देखें, अगर आप इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ लीक, तो देन या ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपने कंफर्म करनी है कि जी अब नहीं हो रहा, एमआरसीपी आपने कर दिया, तो देन देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग द हेडर्स, वो तो अब क्लियर हो गया ना कि देयर इज अ स्टोन, हिड्डा अब उसको सर, आपने निकालना है। हिड्डा, हाँ, कोलिसिस्टाइटिस में रोल है कि जी हाँ, वो गॉल ब्लैडर उससे वो नहीं होता, डिलिनिएट्स नहीं होता, तो और कोलिसिस्टाइटिस में वो एक वो डायग्नोज करने के लिए वो और भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि और आप लीक देखें कि आपने लीक कितनी कितनी एक दफा और आपने वो कराया है। हाँ जी। और दूसरा है ना, लीक जो है ना, इवन एमआरसीपी या बाकी चीजों के ईआरसीपी के ऊपर पिक नहीं होता। पोस्टीरियर जो सेक्शनल डक्ट है ना, अगर वो आपकी कटी हुई है ना, तो लीक परसिस्टेंट होएगा, लेकिन ईआरसीपी कराएंगे इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एमआरसीपी भी हो सकता है, कुछ नहीं है, तो उसके अंदर फिर विंडा स्कैन होता है जो आपको बताता है कि ये लीक यहाँ से हो रहा है, कोई एक लीक वाला है या ये वाला कोलिसिस्टाइटिस में ना, तो उसमें हिडा स्कैन की जो यूटिलिटी है। अच्छा, ये तो जो तूने यूएस गाइडेड बताया, तो ये नीचे जाके नीचे से ऊपर जजुनम से ऊपर आएंगे नहीं, फिर? अच्छा यूएस क्या करते हैं सर, ऊपर से डाली ना एंडोस्कोप डाली आपने, तो गैस्ट्रिक पाउच में चले जो उसमें आ गए ना, वहां पे, तो वहां पे रखे उसके ना, वो देख लेते हैं जो आपका जो बना हुआ एनास्टोमोसिस, उससे आइडेंटिफाई करते हैं जो ट्रांजैक्टेड है ना, कि जो स्टमक रेमिनेंट पड़ा वो किधर पड़ा हुआ, उससे आइडेंटिफाई कर ले ये पड़ा हुआ, और ऊपर से परकुटेनियसली कैथेटर डालते हैं, और उधर से गाइड वाइड डाल के इधर से आपने बाहर से ईआरसीपी डाल ली स्टमक रेमिनेंट के अंदर, उधर से आगे नॉर्मल पे होगी। ये आपको मैं तस्वीरें शेयर कर दूंगा इसकी जो है ना, हाँ, ये पिक्चर्स। शेयर करिए हाँ, ताकि समझ पिक्चर शेयर कर दूंगा। इसी तरह लेप्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है कि आप स्कोप अंदर डाल लेते हैं, आप देख लेते हैं ये गैस्ट्रिक रेमिनेंट है, और ऊपर से आप उसके एक नीडल डाल लें,
उसी के ऊपर गाइड वाइड डालें, अपना डायलेटर डालें, और साथ ही आप उसके स्टमक ऊपर ले आते हैं, पुल करके स्ट्रेच कर ले, होल्ड कर लेते हैं ऊपर, और बिल्कुल इसके साथ और नियोपेडोन में खत्म कर देते हैं फिर, और स्टमक जो है बिल्कुल अपना एब्डोमिनल वॉल के साथ आ जाए, और उधर से आप स्कोप अंदर डाल लेते हैं जो गैस्ट्रिक रेमिनेंट के अंदर। लेकिन इसका मसला ये होता है कि बाद में गैस्ट्रिक फिसला बनने के चांसेस होते हैं, तो आप बंद तो करते हैं उसको स्टमक को, लेकिन फिसला बनने के इसके चांसेस होते हैं। फिर डबल बैलून एंटायरोस्कोपी है। डबल बैलून एंटायरोस्कोपी करते हैं, फिर 2 बैलून होते हैं। आपने जस्ट लाइक एंडोस्कोपी की, और उसमें 2 आवाज नहीं आ बैलून, रही। हाँ मैं से रिकन डबल बैलून एंटायरोस्कोपी होती है, उसके ना 2 बैलून होते हैं। वो नॉर्मल एंडोस्कोपी की तरह स्कोप आपने डाली स्टमक रेमिनेंट अपना जो एनास्टोमोसिस उससे जेजुनम में चली गई, ठीक है, और जेजुनम से एक बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर अगर पुश करते हैं, फिर थोड़ी वो क्या होता है, सारी इंटेस्टाइन आपके पिछले स्कोप के ऊपर आती जाती है, करते 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 फिर वो वहां पे एम्पुला तक पहुंचते हैं। डबल बैलून एंटायरोस्कोपी। अच्छा, तो ये डिफरेंट वो है जो वेज है कि किस तरीके से किया जा सकता है पोस्ट जो बैट्रिक सर्जरी बाईपास के ना। ठीक है, हम्म। चल बस करें आज तो अब। अच्छा हो गया। तो बैट्रिक सर्जरी के 2 सिनेरियो आ गए ना बैट्रिक सर्जरी के ना। जी सर, कल हमने बैरियाट्रिक डिस्कस की थी, और वो अच्छा हो गया कि आखिरी टाइम पे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। ये वाली मैंने आपसे ताज़ा कर ली थी, हम्म ये वाली टेक्निक्स, हम्म तो इस पे मैंने थोड़ी सी बछाड़ कर दी। दूसरा मेरा एक वो वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम्म, एग्जामिनर भी बंदा ही है, जब उससे सवाल पूछते हैं ना तो थोड़ा सा जो उसका एक वो होता है ना कि एग्रेशन बनी होती है, हाँ एक हम्म, अटैकिंग वो माइंडसेट उसका जो बना होता है ना, वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाता है। हाँ तो ये टेक्निक अच्छी है कि तो बीच में एग्जामिनर से भी सवाल पूछ लें। हाँ वो बैक आ जाता है ना, फिर उसके मैं तो उससे ये भी नहीं कह सकता, नहीं जी मैं ये नहीं कहूँगा, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, हम्म। तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और हाँ, ये वो एक्सेप्ट जैसे करते भी हैं ये नहीं, मतलब इट्स साइन ऑफ अ सेफ सर्जन, आप यू आर आस्किंग क्वेश्चन, इसी तरह से नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन भी, या बाकी डाटा कंप्लीट नहीं होता, आप उससे मांग रेडियोलॉजिस्ट से बात कर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप उससे बात करते हैं, यार मुझे ये भी बताओ, तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं ना। हम्म हम्म वो मैंने कहा कि ये जो है ना हमारा वो ठीक रहा है, ये जो बातचीत पहले वो कर रहे थे ना, हम्म। तो मुनासिब मुनासिब करके तो उसका जो है ना वो बीच में पूछ लें तो वो अच्छा है। अगेन आपने बॉडी लैंग्वेज को रीड करना है कि एग्जामिनर की बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, उसके मुताबिक आप चलते जाएंगे। हम्म। तो चलें जी, वी हैव डिस्कस 3 cases. So one is a post who and bypass. The patient developed cholelithiasis and cholelithiasis. Its management, how to approach it. And the, the second one was back swelling. So management of the malignant swelling. So solid thyroid nodule with the other nodule on the right side of the lobe. And the third scenario, post-bariatric surgery, patient developed portal vein thrombosis. So thank you so much for sharing and asking the questions. So thank you so much, Sir Numan, Amir, once again, and Usman. सर थैंक यू वेरी मच, चल थैंक यू कल इंशाल्लाह फिर ऑल कल ऑफ यू। बाकी पूछेंगे।